अब पेटीएम में जब वो 2000 से 800 तक आया तब तक कोई न्यूज भी नहीं था नेगेटिव ऐसा. सो Hmm. समवन हु हैड बॉट एट 2000 वुड हैव केप्ट ऑन एडिंग टिल 1000. Hmm. बट बैक ऑफ द हेड तो पता है ना कि बॉस ये 2000 तो शायद नहीं जाएगा. I actually had started very early when I was in school. Then itself, I was having interest in stock markets because my parents were doing it. That my tuition teacher was doing it. सामने शीशा है जो stock market है. It will come out the same the person is. वो वहाँ पे fake नहीं कर सकता. अब उसको आप कितना ही ज्ञान दे दो कि भाई you should invest or you should risk 1% of your capital on one particular trade, or you should not allocate more than 10% of your equity portfolio to one particular stock. But जब वो time आता है when he is trading or investing, the person generally, if he is a rule breaker, he will break the rule. ट्विटर पे जिस स्टॉक के मीम बनते हैं ना, मैं तो वो स्टॉक खरीद. आईटीसी पे बने थे 200 पे, मैंने खरीद लिया. उसके बाद रिलायंस पे बने थे मीम्स की 7 साल से कुछ नहीं कर रहा, मैंने खरीद लिया. और उसके बाद 3 गुना हो गया. Were you making more money from Yes. trading than your job? Yes. तब क्या दिक्कत है बॉस? तब तो मैं तो then the तो question is तब तो completely. तभी तो हाँ. मैं कह रहा था कि यार दो तीन काम क्यों करने हैं. लेट्स बी फ्री. Hi everyone, I'm Ravi Handa and welcome to Desi Fire podcast. It is a show where we talk about financial independence, early retirement, and personal finance. Today we have Deepak here with us. Deepak is someone who has been investing in the stock market directly for a very, very long time. And I believe I have been following him on Twitter for close to 4 or 5 years now. He has been helpful at various times in helping me figure out the stock market. And I thought that's why it would be a good idea to invite him to the show so that his learnings can be shared with my audience as well. So, welcome, Deepak. Welcome to the show. Hi Ravi, thanks for having me today. It's an honor to be on your Desi Fire podcast. Honor. So yeah, a unique name as well, Desi Fire podcast. So Honor के level तक तो नहीं है, but ठीक है. Just I'll take that. You are glad to be here. yes, So, I'm glad to be here. ऐसे टोन डाउन कर लेते uh, हैं. so Deepak, I'll start with the fundamental question. Can you tell me a little bit about your investing journey, your investing history? How have you been investing in the stock market? Sure. So I actually had started very early when I was in school. Then itself, I was having interest in stock markets because my parents were doing it. That my tuition teacher was doing it. So I had developed that interest, and I was seeing the mistakes being done and the right thing being done across. So I was comparing how a winning strategy can be developed in stock markets. So during that early starting in stock markets, I got an idea about what was working, and in about I'll say 5 to 6 years, I was able to think through it that what is working. Nowadays, if you say that someone is able to figure out in 5 to 6 years, you will probably say कि वो काफी स्लो बंदा है. क्योंकि आजकल तो 3 महीने 6 महीने if you are into stock market, you should be actually doing it well. But I'm talking about 2002 to 2006 when knowledge was not this freely available कि आप ट्विटर पे कुछ पूछ लो या फिर कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड इट इज इजी टू रेप्लिकेट पीपल शेयरिंग द जर्नी और प्रोसेस. तो वो चीज़ें तब थी नहीं, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं थी. तो उसमें मेरे को टाइम लगा 5-6 साल का, बट टिल 2008 क्रैश आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोबेबली इन्वेस्ट और ट्रेड और डू थिंग्स प्रॉपरली. तो एक अच्छी चीज मैंने जो करी है वो ये है कि ऑल द मिस्टेक्स, ऑल द एक्सपीरियंसेस, ऑल द साइकिल्स, आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग देम कि भाई तब क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, किस तरीके से उस चीज को रिपीट किया जा सकता है. वी कैन से दैट किस तरीके से उस आउट परफॉर्मेंस को रिपीट किया जा सकता है या आउट परफॉर्मेंस को ग्रैब किया जा सकता है. तो ये एक जर्नी में हम जैसे डायरी लिखते हैं उस तरीके से वो मेमोरीज बनती रही अबाउट वेरियस बुल मूव्स जो छोटे पीरियड में आती हैं या फिर क्रैशेस जो छोटे पीरियड में आते हैं, मे बी 7-8 और मे बी लल पीरियड आफ्टर दैट. जैसे 2009 में देयर वाज अ वेरी बिग रिबाउंड एंड देन अ वेरी साइलेंट साइडवेज मार्केट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years and nothing was happening.
then again something happened in 2013-14, then we had a big move, then again 2018-19 we had sideways to down crushing moves when nothing was working again. Then the COVID crash came, then suddenly everything started working, and we are from there to here, about 4x on Nifty level from the COVID lows. So we know that what a crash can when a crash can happen, it just comes unannounced. So वो बता के नहीं आता कि भाई मैं गिरने वाला हूँ. So recently जैसे something happened in global markets कि जापान सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट राइज किया, then people are expecting कि यूएस फेड जो है वो अपना रेट कट करे. So in all this confusion, the global markets are suddenly down. So we never know, but we know one thing, that mid cap, small cap usually falls more in such times. Large caps are largely stable and the first ones to bounce. तो ये जो जेनरिक चीजें होती हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, वो ही हमारी फिर बाद में हेल्प करते हैं. सो जैसे वो बोलते हैं कि हिस्ट्री डजंट रिपीट बट इट राइम्स. तो स्टॉक मार्केट में तो ये चीजें ही ज्यादा जो है वो हमारे काम आती है. फेयर. तो ये जो तुम बता रहे हो, ये तुम्हारी लर्निंग्स वगैरह रही हैं, यस. ये दिमाग के अंदर ही है कि कुछ तुमने लिख विक के लिस्ट बना के सम डॉक्यूमेंट बना के कुछ फॉर्मलाइज प्रोसेस रख रखा है इसका? सो इसको मैंने काफ़ी फॉर्मलाइज किया है. सो हम्म. जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैंने उसकी लगभग 18 स्टडीज हैं जो प्रॉपरली with graphs and everything. I have formalized, recorded them, and I have kept it on YouTube also, and I have shared with my family also कि भैया देख लेना, यही यही धन दौलत है हमारी. Then certain things which are related to cash markets, investments, उसका भी similar process से I have documented it well, ताकि वो चीज at least, because it is years of experience. अब मान लो कल को कुछ याद ना रहे या डिमेंशिया हो जाए या कुछ हो जाए, आप भूलने लगो, गजनी बन जाओ, तो देयर शुड बी समथिंग टू रिमाइंड कि यार ऐसे चीजें थी, या फिर ऐसे आप एक्सपेक्ट करते हो, या ये आपका प्रोसेस था. फेयर. सो फेयर. नहीं, दैट ये इज डॉक्यूमेंटेड. नहीं, डॉक्यूमेंटिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब यस. इन्वेस्टिंग की बात आती है, क्योंकि तुम तो बहुत एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हो. तुम तो मतलब बोल रहे हो कि व्हेन यू आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन. मेरा तो ये होता है ना कि यार कभी कभी मैं अपने ओपिनियन से बहुत ज्यादा स्वे हो जाता हूँ. तो कि मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे कोई भी चीज जो है ना वो, अच्छा हाँ, आई शुड इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन एक्स और वाई और जेड थिंग, या मेरे को कुछ बेच देना चाहिए इम्पल्सिवली. एंड आई हैव टेकन इम्पल्सिव डिसीजंस इन द पास्ट. some of those impulsive decisions have worked and some of those impulsive decisions have not worked. तो मैंने अब अपने लिए जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ रूल बुक्स ही बना के रख रखी है कि भैया ये फॉलो करना है. अगर कोई इंपल्सिव डिसीजन ले भी रहे हो, सो यू कैन गो एंड चेक दैट कि भाई कोई स्टार्टअप के अंदर जैसे पैसा डालना है तो मतलब 1% 2% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं डाल देना है कि उसके अंदर कि भैया वो डूबने का हाई रिस्क है. या कोई भी ऐसा इन्वेस्टिंग डिसीजन है कि कभी भी कुछ बेचना है तो ऐसा नहीं है कि आप 25% अपना एक दिन में कभी स्विंग नहीं करना है, कितना पोर्शन को स्विंग करने में कितना टाइम लगना चाहिए एंड ऑल दैट. सो तुम तो जब तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो ज्यादा सोच सोच के, मेरे को तो अपने आप से बचाने के लिए एक वो रूल बुक चाहिए होती है कि भाई खुद ही मैं कुछ घपला नहीं कर दूं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द आइडिया व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू ऑन द शो कि मुझे अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स का रूट या पीएमएस का रूट या एआईएफ का रूट या कोई एडवाइजरी, मैं किसी और पे भरोसा करता हूं कि भाई वो मुझसे बेटर इन्वेस्ट कर लेगा. दैट इज व्हाई बल्क ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स आर इन म्यूचुअल फंड्स. एंड बहुत बार फिर मेरे को ये लगता है कि नहीं यार, बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं जो कि इक्विटी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनका 80% पोर्टफोलियो या 90% पोर्टफोलियो जो है वो म्यूचुअल फंड्स में है. बहुत सारे लोगों का 50-50% रहता है, बहुत सारे लोगों का 70-80% इक्विटी में डायरेक्टली रहता है और 10-20% के म्यूचुअल फंड या मैनेज्ड फंड्स रहते हैं. और तब मेरे को लगता है यार कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, या हर आदमी अगर स्टॉक मार्केट में डाल के खुद ही पैसा कमा सकता है
तो वो पैसा मैं कैसे कमाऊं? तो मैं तुमसे यही पूछना चाहूंगा, बिकॉज यू आर समवन जो कि मेजॉरिटी ऑफ योर पैसा तुम खुद ही मैनेज करता है एंड हैंडल करता है, इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. स्किल सेट, डिसिप्लिन इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, बट क्या एक क्या मैं ये काम कर सकता हूं? मतलब कैन आई एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली? वुड यू रिकमेंड टू मी एज अ फ्रेंड कि हाँ अंडा तुम अपने आप थोड़ा थोड़ा करने ट्राई करने की कोशिश कर? और how would a random person start investing in the equity market directly? I hope इतनी लंबी कहानी में तुम्हें नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं क्वेश्चन आ गया क्लियर है, होगा. क्वेश्चन क्लियर. सो इसमें रवि भाई एक सिंपल सी चीज होती है. लेट्स से लेट्स एज्यूम दैट समवन हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स. तो जो उसकी पर्सनैलिटी होती है ना, वो सामने शीशा है जो स्टॉक मार्केट है. इट विल कम आउट द सेम द पर्सन इज. वो वहां पे फेक नहीं कर सकता. लेट्स से समवन इज इम्पल्सिव या उसमें गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट्स है, तो दे विल कम आउट. 101% दोज इंस्टिंक्ट्स विल कम आउट. जैसा सामने वाला बंदा है वैसा ही उसका ट्रेडिंग होने वाला है और वैसे ही उसके डिसीजंस होने वाले हैं. अब उसको आप कितना ही ज्ञान दे दो कि भाई यू शुड इन्वेस्ट और यू शुड रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल ऑन वन पर्टिकुलर ट्रेड, और you should not allocate more than 10% of your equity portfolio to one particular stock. But जब वो टाइम आता है when he is trading or investing, the person generally, if he is a rule breaker, he will break the rule. वो रूल उसको नहीं हेल्प करने. सो दैट इज वन थिंग. सो इसमें जो मेरा कहने का बात था वो ये था कि जैसा हमारा पर्सनैलिटी है हम उसी तरीके से मार्केट में बिहेव करने वाले हैं. हम उससे डिफरेंट नहीं हो सकते, सेम रहेंगे. अब बात आती है कि क्या टूल्स अवेलेबल हैं, क्या हर कोई कर सकता है. तो ये चीज़ हमें बेस्ट ऑफ टाइम्स और वर्स्ट ऑफ टाइम्स में बिल्कुल क्लियर हो जाती है. व्हेन देयर इज यूफोरियन मार्केट तो हमें पता लग जाता है कि हम कितने रूल्स से अपने आप को कैरी कर सकते हैं. और वेन एवर देर इज पैनिक इन मार्केट तो तब भी ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी, भाई ये यहाँ कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ये नहीं संभल रहा. या फिर जैसे हम बोलते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, बट जब वो होता है तो देखा नहीं जाता. सो इन शॉर्ट मतलब जैसे लेट्स से कोई स्टॉक है, वो इट इज ऑलरेडी अप लेट्स से 150% इन 3 months 6 months, बट वी स्टिल गो अहेड एंड इन्वेस्ट उसमें कि यार ये तो बूमिंग है, यही है बस जो है. और उसको ले लेते हैं ये सोच के कि यार नीचे आएगा तो देख लेंगे और डाल देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे. बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स डाउन, तब पहला क्वेश्चन ये नहीं आता कि कितना और डालना है. पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. स्टॉक डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है. रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग, बिकॉज लेट्स से हमारा कैपेबिलिटी क्या है टू डू टेक्निकल एनालिसिस. तो इजी है, आप 100 स्टॉक्स 500 स्टॉक 1000 स्टॉक पे एक दिन में कर दोगे. एंड यू विल प्रोबेबली सिलेक्ट 10 टुडे 20 टुमारो. आप आज 10 ढूंढोगे, कल 20 ढूंढोगे, रोज के आप 50 स्टॉक ढूंढ दोगे. बट दैट इज लाइक हेडलेस चिकन रनिंग अराउंड, कि आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है. यार ये ले लो वो ले लो, कल ही तो लिया था, अब क्या करना है. तो वो अब दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कि आपको फिर लगेगा कि यार चॉइस क्या करूं मैं. शुड आई स्विच एवरी डे, शुड आई डू इट ओकेजनली, आई एम डूइंग इन्वेस्टिंग और आई एम डूइंग ट्रेडिंग. तो वो फैसला हम प्रोबेबली तभी करते हैं जब एक एक बेकार फेज आता है इन स्टॉक इन्वेस्टिंग और स्टॉक ट्रेडिंग. सो लेट्स से हम सेटल हो जाते हैं बेस्ड अपॉन, आई गेस योर ऑडियंस, कि दे आर मोर इनटू स्टॉक सिलेक्शन, कि एक कंपनी सिलेक्ट करेंगे और उसमें एक प्लान बनाएंगे कि इसमें हमें पैसा डालना है. जस्ट लाइक योर प्राइमरी इन्वेस्टिंग और स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, कि हम एक कंपनी समझेंगे अच्छी जमेगी तो उसमें पैसा डालेंगे टाइप से. तो उसका भी एक आप लिमिट सेट करोगे कि मैं 10 स्टॉक्स 20 स्टॉक्स को ट्रैक करूंगा और उनमें मैं सिस्टमैटिकली कुछ करने वाला हूँ. सो वो जो वो जो पाथ है और जो म्यूचुअल फंड का पाथ है, वो दोनों को अगर कंपेयर करें तो स्टिल वेटेड रिस्क इज हायर इन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग देन म्यूचुअल फंड्स. अब उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. लेट्स से यू हैव अ 10 स्टॉक पोर्टफोलियो एंड 7 स्टॉक्स आर डूइंग वेल, 3 आर नॉट डूइंग सो वेल,
and they are drastically down. So आपका एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, आपका मतलब नॉर्मली एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आता है कि यार मैं लॉस तो नहीं हो सकता. सो व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट वी डू? जिसमें लॉस है वी ट्राई टू ऐड मोर ऑफ द वेरी स्टॉक. हम उसी को ज्यादा खरीदते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज कि एलोकेशन जो प्लान था वो डिरेल होके एंड वी इवेंचुअली एंड अप मेकिंग a higher investment in a stock which is going down, right? Not taking a company specific name, but a stock was at 2000. It looked decent at 1300, then it fell to 500, then it fell to 300. But on the way down, everything has not happened in one day. So it has taken, let's say, 2 years of time. अब वो 2 साल तक if you are regularly investing downward onto that stock, your allocation is of course going higher. और आपका जो cost of acquisition है वो भी नीचे ही आता जा रहा है, which you are actually liking. यार मेरे को 2000 का था, अभी मेरा average cost is like 1200 because I have bought it more at a lower level. तो वो feeling of winning also starts to kick in कि अब नीचे आ गया, अब थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो वो कचरा हो जाता है उसमें. So this is not true in mutual funds. कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता उसमें कि दे फॉलो अ प्लान एंड दैट प्लान इज ट्रू टू द होल थिंग. कि जैसे एक SIP अमाउंट आता है तो वो उसी प्रोपोर्शन में एलोकेशन होता है. दे डू नॉट लुक एट कि जिसमें ज्यादा नुकसान हो गया उसमें ज्यादा डाल दो, एवरेज डाउन कर दो या वो कर लो. तो ये भी एक मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शन है इन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कि हम अपने आप ही ऐसा कुछ कर देते हैं कि which blows up the plan of doing it systematically. नहीं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि यार अब मेरे को ये नहीं पता है ना कि वो जो कंपनी 2000 से 500 पे आई है, the another argument that could be made for that is a rational argument. मैं लॉजिक वो बिहेवियरल बात नहीं कर रहा हूँ कि कम खरीदूंगा ज्यादा करूँ. That now it's a lot more valuable. कि भाई it's the same company, if the market is devaluing it right now for whatever reason, it gives me the opportunity to buy more of it. तो मैं खाली वो एवरेजिंग के लिए या एसेट एलोकेशन के लिए नहीं, मैंने एक किसी कंपनी के ऊपर कॉल लिया, मेरा एक डिसीजन था कि अच्छा हाँ इस कंपनी की फेयर वैल्यू ये होनी चाहिए, और मैं अगर वो मेरे को उस फेयर वैल्यू से कम में मिल रहा था तो मैंने लिया, और उसका वो भैया 50% टैंक कर गया, जो कि स्टॉक्स कई बार कर जाते हैं, मतलब 50% किसी स्टॉक का टैंक करना 70-80% is also normal. हाँ, तो doesn't it become a lot more attractive now? My thesis becomes a lot more valuable now for buying that share. So you are definitely going to do that. You are definitely going to buy more at lower levels of the same company. But when we are doing it, I take your point कि वो यार और सस्ता ही तो हुआ है. It is actually better, right? But maybe we were wrong to start with. We started to value it at 2000, or maybe things changed, right? Let's say जैसे अभी 2018-19 में हुआ था, स्टार्टअप फंडिंग एकदम से श्रिंक हो गया, right? The environment changed very very quick, and in the changing environment काफी सारी कंपनियां बंद होने की नौबत पे आ गई थी. सो अगर हम उसी सिनेरियो को ट्रीट करें कि समथिंग विच वाज एट 2000, देन दैट फंडिंग क्रंच स्टार्टेड टू कम. तो 2000 पे प्रोबेबली वो ओवर वैल्यूड था, एंड व्हेन द रियलिटी वाज कमिंग इनटू पिक्चर कि यार प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, तो वो वैल्यूएशन पैरामीटर डाउनवर्ड एडजस्ट होते रहते हैं. थिंग्स स्टार्ट टू चेंज, देन कुछ बैड न्यूज आ जाता है या समथिंग चेंज ऑफ कोर्स, और या फिर रिलेटिवली कुछ और अच्छा करने लग जाता है. जैसे आप ऑटोमोबाइल में ले लो कि सडनली EVs वर अ चार्म just a year back, but now things are not same. The charm has come down. तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं, then the prices are not similar. नहीं, चीजें देखो फंडामेंटल्स चेंज हो गए किसी चीज के, दैट इज अ वेरी डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. जो अभी तुम थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहे थे कि भाई वो 106 में खरीदा, वो गिरते गिरते 20 पे गया, फिर वो वापस 400 पे भी तो आया. करेक्ट. नाउ
द वेरी सेम स्टोरी कुड ऑल्सो भी, वो 100 से गिरते गिरते फिर वो 20 पे आया और फिर वो जिंदगी भर 20 पे ही पड़ा रह गया था 5 साल। तो सो मेरे को तो पता मेजोरिटी थोड़ी स्टॉक्स तो लगने ऐसे ही वाला है, होते हैं, तो मेरे को थोड़ी पता मेजोरिटी तो लगने ऐसे ही वाला हो है जाता कि है। ये नीचे क्या? जाके ऊपर आएगा या नीचे ही पड़ा रह जाएगा या बंद हो जाएगी। आई डोंट नो दैट। करेक्ट। तो मैं करेक्ट। कैसे करूंगा? मतलब तुम एक बार तो बोल रहा है कि अगर वो आदमी इन्वेस्ट करता रहता तो ठीक रहता, अभी तुम ये बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये नीचे जा रहा था और तुमने इसका एक्स्ट्रा ले लिया तो तुमने गलती कर दी। भाई तो मेरे को सो एक बताना कि या तो मैं लेता रहूं, और अगर मैं नहीं लेता रहूं तो नीचे जाने पे मैं नहीं लूं, मतलब दोनों कैसे करूंगा बॉस पे? हाँ, तो नाम ले सकते हैं क्या स्टॉक का, तुम्हारी इफ मर्जी इट इज है, ओके? मेरे को तो क्या फर्क मेरे को पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सो प्लीज। बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट पेटीएम एट 2000। हम्म। सो अब पेटीएम में जब वो 2000 से 800 तक आया तब तक कोई न्यूज़ भी नहीं था नेगेटिव एज सच। हम्म। जस्ट दैट वो प्रॉफिटेबिलिटी पे मार्केट को चाहिए था, या फिर हम्म। एक्स वाई जेड चीजें हुई। सो हम्म। समवन हु हैड बॉट एट 2000 वुड हैव केप्ट ऑन एडिंग टिल 1000। हम्म। बट बैक ऑफ द हेड तो पता है ना कि बॉस ये 2000 तो शायद नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि वो वैल्यूएशन, वो मार्केट कैप, वो सब चेंज हो चुका हम्म। था। एट द सेम टाइम जो मैं वो 100 रुपए वाली कंपनी की बात कर रहा था, वो था मैक्स वेंचर्स। इट वाज इनटू दिस ओल्ड ओल्ड एज हाउसेस। सो बेसिकली ये वृद्धाश्रम 5 स्टार। तो बेसिक बेसिक सी बात थी कि यार इंडिया में अर्निंग्स बढ़ रही है लोगों की, एंड इफ समवन वांट्स स्पेशलाइज्ड टीम टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो एक ऑप्शन इज अवेलेबल। प्लस दे वर इनटू रियल एस्टेट एंड ऑल, प्राइम प्रॉपर्टीज था नोएडा में, दिल्ली में। तो दैट वाज अ प्लस। तो देखो मतलब एक जैसे वो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स लोग बोलेंगे कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, दिखता है, पता है वैल्यू क्या है। सो इट इज अ सेम टू सेम कंपैरिजन कि यार पेटीएम का मोस्टली नहीं आइडिया कि क्या चीज़ है, ऐप ही तो है। एंड द अदर कंपनी एक आइडिया कि यार एक रियल थिंग इज देयर एंड उसका वैल्यू कर सकते हैं। और एक और चीज है इन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, कि जब मार्केट एक अपस्विंग में होता है ना, तो देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स टू टॉक अबाउट। एंड व्हेन अ सिवियर करेक्शन कम्स, लेट्स से 50 60 70% इनटू स्टॉक्स, तो उसके बाद का जो रिबाउंड है, उसमें सब नहीं आते ऊपर। दैट इज द प्रॉब्लम। सब स्टॉक्स वापस ऊपर नहीं आते। सो जैसे जो क्वेश्चन आपका था ओरिजिनली कि यार तुम कैसे कह सकते हो कि इस वाले में तो नहीं करना था इन्वेस्ट नीचे, और हम्म। दूसरे वाले में करना था। हम्म। तो वो हाइंडसाइट ही है कि ऊपर कुछ आएगा या नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आज की डेट में टेक्नोलॉजीज में चिप्स, यूएस में बिल्कुल मतलब अंकल चिप्स इतनी फेमस नहीं है जितनी एआई चिप्स फेमस है आज की डेट में। सो इफ समथिंग रॉन्ग गोज, कि भाई इसमें जैसे एक रिसेंट एक रिपोर्ट भी मैं देख रहा था, उसमें था कि टेक कंपनीज जो है वो केपेक्स बहुत बड़ा बड़ा कर रही है एंड कैश आउटगो इज मैसिव, एंड लेट्स से दिस थिंग डजंट वर्क। आई डोंट नो इफ इट वर्क, इट डजंट वर्क। इफ इट डजंट वर्क तो फिर बैंड बज जाएगा ना। और जो एंसिलरी कंपनीज उसके साथ में, अब अकेली एनवीडिया तो होगी नहीं जो ऊपर गई है। देयर विल बी लाइक 50 100 200 500 कंपनीज विच मस्ट बी गोइंग अप ऑन द सेम थीम। अब लेट्स से फॉर सम रीजन वो थीम फ्लॉप हो जाता है इन नेक्स्ट लेट्स से 2 इयर्स, या फिर बाकी कंपनीज जो केपेक्स कर रही हैं वो स्लो डाउन कर देती हैं स्पेंडिंग, तो डिरेल हो जाएगी चीजें। और साथ में एक मार्केट करेक्शन आ जाए तो वो वाले स्टॉक्स तो वापस कभी ऊपर ही नहीं आएंगे। हम्म। सो ये डायरेक्ट इक्विटीज में ये रिस्क रहता है। इसका एक मिटिगेशन है, दैट दैट मिटिगेशन इज दैट, जो हमने शुरू में बात करी थी कि रिलेटिवली मिड कैप ज्यादा गिरते हैं, लार्ज कैप थोड़े कम गिरते हैं। तो वो जो लार्ज कैप का जो थीम है ना, उसके पीछे छिप के इन्वेस्टिंग की जा सकती है कि उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग बस्ट इज रिलेटिवली लोअर। चल यार, मेहनत, टैलेंट, किस्मत, बिहेवियर सब चाहिए, और ये सब के बावजूद, मतलब सी वॉट एवर एग्जाम्पल्स यू आर गिवन, वो सबसे तो मेरे को तो है ना डर और लग गया है कि नहीं भैया, मतलब मेरा म्यूचुअल फंड्स को बीट कर पाना या बहुत ही मुश्किल है, तो फिर इस पचड़े में पढ़ाई क्यों जाए? मतलब व्हाट इज द एडवांटेज दैट समवन, majority of people, why are majority of people doing it?
I'm not talking about me as an individual or you as an individual. Yes, there are people who will do well in every field, but हर आदमी आज की डेट में मैथ्स पढ़ाने चला जाएगा तो नहीं पढ़ा पाएगा ना. सो बट हर आदमी इन्वेस्ट तो कर रहा है, फंड वाले बैठे हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट गिव द मनी टू देम. ऐसी क्या एडवांटेज है जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर रहेगी और म्यूचुअल फंड्स में नहीं रहेगी? एक मीम आजकल काफी फेमस है कि लाख बुराई थी रावण में, पर उसने कभी जो भी आपको चिपकाना है उस पर चिपका सकते हो. तो सेम इसमें भी ट्रू है कि लाख बुराई होंगी म्यूचुअल फंड में, लोग करेंगे बुराई, पर आप उसके रिटर्न को बीट नहीं कर पाओगे एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर और इन्वेस्टर ऑन अ ब्रॉडर स्केल, जेनरिक. जो सेबी के डेटा है, पहले एफएनओ मार्केट्स में आया था कि 90% आर लूजिंग मनी. अभी कैश मार्केट का आया है कि 70% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी. तो इसका समरी क्या है, शॉर्ट समरी, कि पीपल आर लूजिंग मनी येट दे आर ट्रेडिंग. वाई दे आर ट्रेडिंग? वो लोग गोवा में जाते हैं कसिनो खेलने के लिए या लास वेगस में जाते हैं, वो सेम थ्रिल है, वो सेम थीम है कि एक बार जिसने कर लिया वो फिर छोड़ता नहीं है. he जस्ट कीप्स ऑन डूइंग इट. पहले प्रोबेबली ये छोटे लॉस को रिकवर करने के लिए करता होगा या फिर बाद में बड़े लॉस को रिकवर करने के लिए करता होगा. बट द थिंग इज कि वंस समवन स्टार्ट्स टू डू इट, इवन आफ्टर ही इज लूजिंग, ही कंटिन्यूज टू डू इट. तो ये तो एक वो प्रॉफिट लॉस से हटके बात हो गई कि यार ये तो नहीं 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 यार, एडिक्शन है. ये नहीं मानूंगा बॉस. में मतलब देखो, ये तो आई डेटा हैव है सर. I have agreed with whatever you have said. I agree with the data. I'm not agreeing with the interpretation of the data that you are giving here. And my point कि is simply this. लोगों को नशा है इसलिए करते हैं. हाँ, कि तो ये ये नहीं बोल पसंद नहीं सकते कि आया. नहीं यार स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है. भैया गैम्बलिंग तो नहीं है. नहीं नहीं, मैं ये नहीं स्टॉक कह रहा कि मार्केट का स्टॉक मार्केट नशा है. गैम्बलिंग है. हाँ. मैं ये कह रहा हूं कि इवन आफ्टर लूजिंग हम्म. पीपल स्टिल डू इट. हम्म. व्हाई? क्योंकि लेट्स से इट तुम. इज नॉट गैम्बलिंग, बट हाँ. व्हाई? इन द होप ऑफ विनिंग, राइट? हम्म. That they will recover it or they will win it eventually or they will learn it eventually, right? So it is so connecting and it is so eventful कि एक तो थ्रिल है बॉस, ये तो रियल है, बिकॉज थ्रिल इज देयर एवरी डे. इट इज अ न्यू चैलेंज. आप कोई ऐसी कोई बुक नहीं है आपकी भाई इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा स्टॉक मार्केट. इट इज चैलेंजिंग. और इसमें बॉस मजा भी बहुत आता है कि यार लेट्स सी एंड रिजल्ट क्या है, किस चीज में मजा आ रहा है, कि मैं ठीक हूं या नहीं, वॉज आई राइट और रॉन्ग. वो डोपामिन है, वो इसी चीज का नशा है कि मैं सही हूं या गलत हूं. नहीं तो एक बात बताओ आप, किसी को क्या पड़ी है कि यार यूएस फेड अभी अगस्त में रेट घटाएगा या सितंबर में रेट घटाएगा, व्हाई डू यू वांट टू गेट इट राइट? मान लिया मैंने. इट इज देयर इज अ थ्रिल एस्पेक्ट ऑफ इट. आई एम नॉट डिनाइंग इट ऑब्वियसली. बट मेरा पॉइंट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, भाई तुमको थ्रिल के लिए, डोपामीन के लिए 500 चीजें और हैं. तुम डोपामीन के लिए यार तुम जाके अपने ही पैसे से तुम खिलवाड़ तो नहीं करेगा ना. सी, और तुम गैम्बलिंग भी करता है. तुम्हारे अंदर, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ वाइसेस रहते हैं. मेरे अंदर तो बहुत है. बट और गैम्बलिंग के अंदर तो मतलब आई पर्टिकुलरली लुक आउट फॉर डेस्टिनेशन कि भैया कहां पे जाके जो है पत्ते खेल सकते हैं. सो लीगली, सो टू से. सो आई एम अ गैम्बलिंग एडिक्ट. आई एम नॉट डिनाइंग इट. बट मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि भैया गैम्बलिंग के अंदर जाके मैं इन्वेस्टिंग के 10% अंदर ऑफ जाके नेटवर्थ जो गैम्बलिंग है वो करेंगे, राइट? उड़ा दूंगा, या मैं 10% ऑफ अपनी नेटवर्थ में लगा भी दूंगा. फॉरगेट उड़ाना. आई एम नॉट गोइंग टू गैम्बल विद दैट सॉर्ट ऑफ मनी. एंड when it comes to equity investing, you will find a lot of people have substantial amount of money in it. तो सब तो गलत नहीं हो सकते यार. नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ सब गलत होते हैं. वो तो हमारी कन्वर्सेशन उस तरीके से निकल गई, राइट? कि निकल गए बस. और देखो रियलिटी जो है या फिर जो प्रॉपर वे टू डू इट है, उसमें भी देर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड देर इज अ वेरी प्रोसेस जो है वो भी काफी डिफाइंड है कि यार आप ये 10 चीजें कंपनी में देखो टू शॉर्ट लिस्ट टू इन्वेस्ट इट, राइट? और
बट इवेंचुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ठीक है. ए, म्यूचुअल फंड इज द परफेक्ट शॉर्टकट टू इट, टू डू इक्विटी एक्सपोजर. उसमें आपको कुछ नहीं करना, राइट. देन सेकंड थिंग इज कि डू यू वांट टू डू इट फुल टाइम और डू यू वांट टू डू इट विद जॉब. उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एफर्ट उसमें लगा सकते हो. अगर हम बात करें कि लेट्स से वी वांट टू डू इट विद आवर जॉब, तो उसमें देर विल बी लाइक कि रिस्क कितना लेना है, ज़्यादा रिस्क ही लेना है या कम रिस्क लेना है. सो उसमें हम उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं. अगर हमें रिस्क कम लेना है तो हम लार्ज कैप पे स्टिक करेंगे. उसमें रिस्क ऑफ रिवन जैसे हमने बात करी कि थोड़ा कम है कंपेरेटिव टू मिड कैप स्मॉल कैप. और देन डाउन द लाइन वी कैन गो टूवर्ड मिड कैप्स, देन स्मॉलर कैप. एंड एसएमई में तो देखो मैंने भी खुद आज तक किया नहीं है इन्वेस्ट, बिकॉज मेरे को थोड़ा वो लिक्विडिटी उसमें चैलेंजिंग लगता है. देन रिस्क प्रोफाइल अपने खुद का डिफाइन किया और उसमें हम वी कैन गेट इनटू इट. देन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकिल्स आल्सो इम्पोर्टेंट है उसमें, कि वेदर वी आर टुवर्ड द अपर एंड ऑफ द वैल्यूएशंस और समवेयर इन द मिडल और एट द पेसिमिस्टिक एंड ऑफ द इट. अब वो चीज़ें हमें आज की डेट में तो आई थिंक 1 साल 2 साल के अंदर सब क्लियर हो ही जाएगा कि बॉस कैसा चल रहा है, मार्केट बूमिंग है या फिर डिप्रेसिंग है. देखो, ठीक जिसको है. सीखना होगा वो सीख हाँ, जाएगा. वो मैं सीख तो लेगा. हाँ. उसमें तो डाउट नहीं है, और मेरे को देन. अपनी कैपेबिलिटी पे भी भरोसा है कि हाँ भैया, अगर हम मेहनत हाँ. करूंगा, जम के लगूंगा, सीख जाऊंगा. पर जब बात आ जाती है ना फंडामेंटल की, भैया ये सब करना क्यों है, तो देर हैज टू बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि अच्छा हाँ, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मेरे को उतनी एक्स्ट्रा कमाई कुछ होगी. पॉसिबल है या नहीं, हाँ. राइट. अब जैसे तुम बात कर रहे हो कि जॉब के साथ में आप कर रहे हो हाँ. तो ये कर लो. अगर भाई तुम किसी को बोल रहे है कि जॉब छोड़ के अगर करना है, so there is a huge amount of opportunity cost that he is also leaving behind. कि यस. भाई जॉब में वो 100 रुपया कमा ही रहा था ना. करेक्ट. अब रिस्क भी नहीं है लॉस है ना. होने का तो. हाँ. अब ये हो जाएगा कि अगर वो जॉब छोड़ के इसके अंदर लग रहा है फुल टाइम, तो एक तो उसको अपने रिटर्न्स कम से कम 100 से तो ज्यादा लेके आने पड़ेंगे, सो दैट इट कॉम्पनसेट्स फॉर व्हाटएवर ही वाज डूइंग अर्लियर. तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है यार वो तो. कि बट करते ही हैं लोग. तुम खुद भी तो मतलब यू वर वर्किंग टिल वेरी लॉन्ग यस. लॉन्ग पीरियड ऑफ 21 टाइम. तक. या आई saw, 2021 तक. and then you decided to shift full time into it. So can you tell me a यस. little bit about this part of it कि भाई क्या था, कब तक तुम पहले कैसे कर रहा था, फिर तुम क्यों मूव किया इसके ऊपर फुल टाइम काम करने के लिए? little bit around that. करेक्ट. सो मैंने लगभग 10+ ईयर्स तक आईटी में जॉब किया था. Hmm. आई वॉज डूइंग इट विद जॉब ऑल्सो एंड इट वॉज गोइंग जस्ट फाइन. Hmm. एंड सडनली आफ्टर कोविड थोड़ा साइकोलॉजी थोड़ा चेंज हो गया टुवर्ड लाइफ ऑल्सो. तो लगा कि यार टाइम थोड़ा कम मिल रहा है. आई वॉज मोर इन टू ट्रेडिंग. तो मैं ट्रेडिंग पे भी टाइम दे रहा हूँ, ऑफिस का भी थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, देन घर पे भी टाइम दे रहा हूँ. तो काफ़ी कंजेस्टेड सा हो गया था. इट वॉज नॉट फीलिंग राइट. तो मेरे को लगा यार टाइम बनाना है. टाइम कैसे बनाया जाए, एक चीज़ को ड्रॉप करना पड़ेगा. आइदर आई लीव द जॉब और आई लीव द स्टॉक मार्केट्स और डू समथिंग विच कैन क्रिएट टाइम. तो मैं मॉनेटरी टर्म से ज़्यादा इसको टाइम की वैल्यू के हिसाब से कंपेयर कर रहा था कि आई वांट सम फ्री टाइम. मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा था माइंड पे उस टाइम पे. तो दैट वाज ऑल अबाउट इट. मैं तुम तो दो पैसों से कंपेयर नहीं कर रहा था. तुम तो 2 से 1 की बात कर रहे हो, मैं तो 1 से 0 पे आ गया यार. मतलब तुम तो जॉब प्लस ट्रेडिंग के अंदर वो बोल रहे हो कि हाँ भैया टाइम नहीं हो रहा था. मैं टाइम क्या भैया, हमको तो काम करना ही नहीं, हम तो आलसी हैं, रहने दो. इसीलिए तो मतलब ट्रेडिंग वगैरह का वो सब तो कुछ था ही नहीं. बट हाँ तो. लेट्स टॉक प्योरली फ्रॉम द मॉनेटरी टर्म्स कि जो भी तुम्हारी सैलरी थी, डू यू थिंक, फॉरगेट हाउ मार्केट्स हैव डन, डिड यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस कि उतना टाइम तुम ट्रेडिंग के अंदर देके उतना तुम एक्स्ट्रा निकाल पाओगे, या वो सब फैक्टर था ही नहीं? इट वाज बेसिकली कि अच्छा हाँ, मेरे को जितना पैसा चाहिए वो मेरे पास में है और जो एक्स्ट्रा चाहिए वो ट्रेडिंग से मैं निकाल लूंगा.
ये So, रवि भाई, टाइम वाली बकचोदी भी आदमी तभी करता है जब उसको लगता है कि वो कर पाएगा। hmm, राइट। तो इक्वेट तो उसमें करते ही हैं कि यार इसको छोड़ देंगे तो इससे मैनेज कर लेंगे। hmm. नहीं नहीं तो एक मैनेज एज इन, ऑफ कोर्स कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल ओनली, कि अगर जॉब छोड़ दिया तो कंपनसेट हो गया फ्रॉम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। yeah. अगर So कर पा that रहे हैं, हाँ, see अगर कर पा there रहे हैं तो ही करते हैं। नहीं नहीं see there are two aspects to it. So one aspect is that my salary is X right now, my trading income is Y right now, and the amount of money that I need is, let's say, Z. राइट। तो एक तो आइडिया ये है कि मेरा जो X को अगर मैं जीरो कर देता हूं, हाँ। so one idea is that I will be able to make X plus Y from my trading. हम्म। The other idea is कि नहीं, I'll make maybe a little more than Y, but my requirement is Z, which is much lesser. So I once again just to summarize, गॉट इट, मैं गॉट इट, ट्रेडिंग से समझ गया, नहीं, समझ तुम समझ गया भैया, ऑडियंस को समझाना पड़ेगा. मान लो मेरी तनख्वाह है 100 रुपया, मेरी ट्रेडिंग इनकम है 70 रुपया, और मेरे को लगता है कि मेरा काम चलेगा 50 रुपए से. तो तुम इसलिए कि अच्छा हाँ, अब मैं 170 की जगह, ये 100 जीरो हो गया, अब मैं ट्रेडिंग से 170 कमा लूंगा. दैट इज वन आर्ग्यूमेंट. द अदर आर्ग्यूमेंट इज कि नहीं, ये हो सकता है 70 का 100 ही हो, बट मेरी जरूरत तो 40 ही है, तो मेरा तो ये 100 से काम चल जाएगा. दीज आर दी टू डिस्टिंक्शंस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है। तो इसमें एक तो ये है कि फुल टाइम करने से 70 वाला 170 नहीं होता। हम्म. ठीक है, 70 वाला 70 ही रहता है। सो यू हैव टू कंपेयर योर 70 विद योर 50। ओके. ठीक है। अब टाइम जो होता है कि आपको छोड़ना का डिसीजन लेना है, तो यू हैव टू कंपेयर कि भाई मैं 100 कमाता था और मेरी ट्रेडिंग इनकम 110 है या 100 से ज्यादा है, तो दैट डिसीजन बिकम्स रिलेटिवली इजियर कि यार जितना जॉब में टाइम दे रहा हूँ उतना इधर उससे ज्यादा अगर इधर से आ रहा है, तो वाई टू डू टू थिंग्स एट वन टाइम। नहीं नहीं, देन आई एंटायरली अग्री विद यू. मेरा तो assumption था कि भैया ट्रेडिंग इज अ पार्ट टाइम साइड हसल, सो इट वुड मेक लेस मनी देन व्हाट योर जॉब वुड. नहीं। Were you making more money from यस। trading than your job? यस। तब क्या दिक्कत है बॉस? तब तो then the तो question is तब तो completely. तभी हाँ तो मैं कह रहा था कि यार दो तीन काम क्यों करने हैं, लेट्स बी हाँ फ्री। क्यों क्यों हाँ दिक्कत हाँ. लेनी है? नहीं नहीं नहीं, then it becomes so okay. Would you have a बट rough approximation? आई वाज सेइंग इन द फर्स्ट एग्जांपल, वो 70 का 100 का एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाना चाहिए कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो मैं 70 से 100 ज्यादा कर कमा लूंगा, लूंगा. 170 कर लूंगा, नहीं वो नहीं Fair, होगा। fair. So these are the two questions then, कि जब तुम छोड़ रहा था, या see, it's a long process. You don't decide to leave it in a day. So at that point of time, your trading income was a few percentage points higher or few multiples higher. मतलब उसमें भी सिक्लिकलिटीज होती थी। लाइक 2017 वाज टोटली डिफरेंट, उसमें तो मल्टीपल था ऑफ सैलरी। हम्म, देन 18 19 वाज कंपेरेबल, 20 वाज गुड। देन वो सिक्लिकलिटीज होती है, कोई कुछ साल नेगेटिव भी आते हैं स्टेबल नहीं है कि तुम ना। प्रेडिक्ट कर इट पाओगे इट कि इज नॉट प्रिडिक्ट। इसमें हाँ. इसमें आपका क्या होता है ना कि यू जस्ट नीड वन गुड ईयर इन लेट्स से 5 इयर्स। आपका एक साल आउटलायर आ जाएगा, तो इट कैन इवन टेक केयर ऑफ यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर ऑल्सो। अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. हाँ, तो फिर तो मतलब कि अगर मान लो इस साल 70 था और अगले साल 100 हो भी गया, तो हाँ। भी उसका क्रेडिट मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम किया इसलिए ये 100 हो नहीं, गया. दैट वुड बी रॉन्ग नहीं, टू नहीं। से. ऐसा भी हो सकता है आपने जॉब छोड़ा और उसी साल मार्केट ही क्रैश हो गया। हाँ, और वो तुम्हारा 70 का जो है वो वो माइनस 20 माइनस ही कर हो दे. गया। हाँ, सो तो इट वॉज. उसको वो गंजे होते ही ओले पड़ने वाली बात हो जाती है। तो सर मुंडाए और ओले गिर गए। तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। और आपको मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु थिंक और एक्चुअली टेक अ लीव फ्रॉम देयर जॉब एक्चुअली हैपेंस एट द पीक ऑफ द बुल मार्केट। बिकॉज तब लगता है कि यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ ना, इसकी जरूरत ही क्या है। सो द इनकम इज ऑब्वियसली हायर व्हेन बुल फेज इज देयर। सो द ओवर कॉन्फिडेंस टेक्स इट अवे फ्रॉम द जॉब एंड देन कम्स द बेयर मार्केट, और फिर सर मुंडाते ही ओले गिरते हैं। I think this is a huge distinction between
द सॉर्ट ऑफ पीपल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में कर रहे हैं, मेरा जो जान पहचान वाली जनता है जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, इतना सोचते ही नहीं है बॉस कि अगले साल क्या होने वाला है या क्या नहीं है, फॉर पीपल हु हैव रिटायर्ड अर्ली, सो टू से. तो yes, everyone is keeps on looking at the market कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या हो रहा है and all that. But जॉब छोड़ दी, अब तुम थोड़ा सा अपना जो है वो तुम डेट से ही निकाल रहे हो, इंटरेस्ट से ही खा रहे हो, तो इतना फर्क फिर पड़ता नहीं है. तो शांति तो है. अब मतलब ये डिफरेंस है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट का, हाँ. कि आप कितने इन्वॉल्व हो उस चीज के साथ. आप म्यूचुअल फंड का प्राइस जो है एवरी डे एवरी 5 मिनट तो नहीं देखते हो. हम्म. हमने वंस इन वीक देख लिया, या फिर कुछ बड़ा मार्केट मूव आया उसके बाद देख लिया, यार क्या हो गया देख लो एक बार. बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक, यू प्रॉबेब यार जो जॉब में होता है ना, मेरे को मालूम है, वो तो फोन पे देखता ही रहता है एवरी फिफ्टीन हाँ हाँ. मिनट एवरी 1 आवर, दिन में 6-7 बार तो देखता ही होगा अरे कि क्या चल रहा एक है. एक बात और, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम गिल्टी ऑफ, कि जो थोड़े बहुत कभी कभार जो स्टॉक्स वगैरह लिए थे, तो मैं तो पोर्टफोलियो भी नहीं देखता था. मैं तो देखता था कि अच्छा आईटीसी का आज क्या हुआ, क्योंकि मैंने आईटीसी खरीदा था. सो म्यूचुअल फंड के अंदर तो कौन सा म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस हैपेंस वंस. ऑनेस्टली मैं साल में एक बार बैठ के देखता हूँ कि भैया कोई अपना म्यूचुअल फंड को इसलिए निकाल देना है कि ये खराब हो गया है या अच्छा हो गया एंड ऑल दैट. बट स्टॉक्स, मतलब पोर्टफोलियो भी पूरा नहीं देखा जाता है, एंड इट इज इंडिविजुअल स्टॉक. सो डेफिनेटली अ टफ गेम टू प्ले. तो तुम अभी कैसे अपने पैसे को मैनेज करके लगता है? मतलब आई एम श्योर देयर विल बी सम पोर्शन दैट इज एलोकेटेड फॉर ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से वो इनकम वगैरह आ रहा होगा एंड ऑल दैट, व्हिच हैंडल्स योर एक्सपेंसेस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट डज योर पोर्टफोलियो लुक लाइक? सो मैं इसको पूरा डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ इन अ वे कि मेरे को मालूम है कि मेरे से लॉन्ग टर्म होल्ड होता नहीं है. सो दैट इज वन थिंग दैट आई नो अबाउट माई सेल्फ. तो वो पर्सनैलिटी सबको अपनी मालूम चल जाती है धीरे धीरे कि भाई तुमसे नहीं हो पाता. तो उसका मैंने आप वर्क अराउंड बोल लो, वर्क अराउंड किया हुआ है कि मैं अपने पेरेंट्स को वो स्टॉक बताता हूँ कि भाई ये 5-10 स्टॉक्स हैं जो हम लेने वाले हैं अगले 2-3-4 साल के लिए, देखेंगे इनमें स्टोरी है, देर इज अ थीम अराउंड इट. तो वो स्टॉक्स मैं पेरेंट्स को दिलाता हूँ. तो वो वैसे भी बेचते नहीं है, तो उनका हो गया लॉन्ग टर्म. अच्छा, मतलब तुमको बोलना पड़ता है कि मैं तो अपने डैडी का अकाउंट लेके रख लिया, सारे नहीं, लॉस मैं ट्रांसफर करता ही नहीं जाएगा. उनको, मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि ये वाला ले लो और इतना ले लो. वो नहीं एलोकेशन नहीं. हो गया. और निकालने का उनका काम है कि नहीं निकालेंगे कितना ही बोल लो नहीं निकालेंगे. अच्छी अच्छा. बात है, नहीं, इट हेल्प्स. तो मैं डेफिनेटली. बेसिकली उनको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ कि हम ये वाली कंपनी खरीद रहे हैं, इसके पीछे ये कहानी है. वो कहानी जमती है तो फिर हाँ इसका ले लेते हैं, ये ठीक लग रहा है. और फिर उसमें फिर वो प्राइस चेक नहीं करते कि अभी इतना ऊपर चला गया या अभी इतना नीचे चला गया. उसमें वो स्टोरी स्टिक हो गया तो ठीक है, देख लेंगे. देन कम द डे टू डे वाला पार्ट कि भाई ये स्टॉक इन न्यूज है, या ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ट्रेडिंग के क्राइटेरियाज है जो मैंने वो अपने 18 बना रखे हैं, मैं वो वाला काम करता हूँ. क्योंकि अपने को चाहिए थ्रिल. तो मैं हूँ, मेरे साथ हम हमारा एक ग्रुप है पूरा. तो हम ऑनलाइन जूम सेशंस करते हैं एंड वी डिस्कस अबाउट स्टॉक्स, और हम उस पर ट्रेड करते हैं फिर कि भाई ये स्टॉक है, ये सेटअप है, ये रूल है. सबको पता है कौन से रूल्स हैं. एवरीवन हैज एग्रीड कि हाँ ये प्रोसेस जो है ये हम फॉलो करेंगे. तो हम अपने टास्क भी डिवाइड कर लेते हैं कि ये आप ट्रैक कर रहे हो, ये हम ट्रैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. एक बार किसी चीज का कुछ नैरो डाउन हुआ, देन वी टेक अ ट्रेड आफ्टर अ डिस्कशन. वही जैसे किसी ऑफिस में एक टीम मतलब टीम डिस्कस बना के करती है. हाँ, टीम बेस्ड काम टीम करते हो. बना के जैसे काम करती है, तो उसमें वो डूअर चेकर भी हो गया कि कोई मिस्टेक है तो आइडेंटिफाई हो जाती है ट्रेड लेने से पहले. देन इट द सक्सेस बिकम्स हायर इन दिस. सक्सेस रेट अच्छा हो जाता है क्योंकि आप अननोइंगली मिस्टेक नहीं करते. एटलीस्ट कोई ना कोई उसको मिस्टेक होगा तो हाईलाइट कर देगा कि यार इसमें ये गलत है. जैसे आज की बात, हम एक ट्रेड कर रहे थे, उसमें देर वॉज अ डिविडेंड की वजह से डिफरेंस इंट्राडे क्रिएट हो गया, तो वो हाईलाइट हो गया, तो हमने ट्रेड छोड़ दिया. अगर हम वो करते तो उसमें बाद में स्टॉप लॉस ही था वो. सो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड.
तो वो डूअर चेकर हो गया, तो दैट बेसिकली हेल्प्स अ लॉट। और इंडिविजुअल अगर करता है तो सेम चीज पे प्रोबेबली वो मात खा जाता है। सो वो सोच समझ के ही बनाते हैं आईटी वाले डूअर चेकर प्रोसेस, कि कोई चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हो तो भाई पहले इसको कर लो। सो टू गाइज आर चेकिंग द सेम स्टफ। देन कम्स द डेट वाला पार्ट। तो आई डू दिस, एक एक चीज होती है कैश सिक्योर्ड पुट्स करना, जिसमें आप स्टॉक्स का पुट शॉर्ट करते हो, एंड इफ द प्राइस कम्स बिलो दैट लेवल तो आप उसको खरीद लेते हो। जब तक बिलो नहीं आता तब तक आप सेफ हो, तो आपको वो पैसा तब तक नहीं चाहिए होता है। और अगर वो पैसा उसके लिए एलोकेटेड है और नहीं चाहिए होता है, तो आपको भी पता है क्या करना है उसको। उसको आप बैंक में डालो, एफडी में डालो, या फिर वो 7.25% का इंटरेस्ट के लिए डालो। सो वो डेट वाला पार्ट हो गया। सो एक बड़ा पोर्शन मेरा उसी पे एलोकेटेड होता है, कि आइदर आई विल सेल द पुट्स एंड आई विल टेक द डिलीवरी ऑफ अ स्टॉक, और द मनी विल बी लाइंग आइडल इन द 7.25 वाला ब्रैकेट में। तो उससे मैं खर्चा निकाल लेता हूँ अपना। तो फ्रॉम दैट डेट पार्ट आई अच्छा, टेक डेट आउट द के जो एक्सपेंसेस। रिटर्न्स आते हैं। हाँ, उसी से मैं अपना एक्सपेंस निकाल लेता हूँ सर। Understood. So you're not really reliant on your trading income for your expenses. नॉट रियली। Not really. So your trading income is essentially to grow your करेक्ट। portfolio, etc. Fair enough. तो कुछ परसेंटेजेस का आइडिया होगा कि अभी 70% पैसा इक्विटी में है, 30% डेट में है, कि दैट्स नॉट द वे यू लुक एट थिंग्स? दो पार्ट्स में है, मतलब ब्रॉडली ट्रेडिंग अकाउंट को भी डेट पोर्शन एलोकेट होता है डायनेमिकली, बेस्ड ऑन कि स्टॉक खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा, होल्ड पे है। सो वो एलोकेशन डेट का ही इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है इन द ट्रेडिंग पार्ट। और राइट। अलग से देर इज अ, आई विल अज्यूम कि 40% इज देयर इन डेट। वो अच्छा, कोई बच्चे का सिक्योरिटी वाला है, सुकन्या में है, किसी में पीएफ है। होगा, हाँ, तो एफडीज होंगे एंड ऑल दैट। हाँ वो उनमें रहता है फिर। अच्छा, so तो 60-40 is broadly 60-40, what you हाँ। और वो 60 भी इट गोज अप कंसिडरेबली टुवर्ड डेट समटाइम्स, depending upon the डिपेंडिंग ऑन मार्केट। market. Fair, fair. तो ठीक है यार, आई थिंक वी हैव हैड अ लॉन्ग इनफ डिस्कशन। इसमें से काम की चीजें तो काफी निकल ही जानी चाहिए, बट बॉटम लाइन तो यही है कि मेरे को वैसे भी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना घुसने की चेष्टा वेष्टा करूं। तुमसे बात करके तो और जो 10% उम्मीद थी मेरी, वो 10% भी उम्मीद खत्म हो गई है कि नहीं भैया, अब नहीं हो देखो पाएगा मुझसे। रवि भाई, मैं शुगर कोट करके बताने वालों में से तो हूँ नहीं, कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, आप इसमें आ जाओ और मजे ही मजे। तो वो चीज है नहीं। तो जैसे मैं आज संदीप से भी बात कर रहा था, तो वो बोल रहे यार, जब लिखने बैठते हैं कि क्या पॉजिटिव्स हैं ऑफ डूइंग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और क्या नेगेटिव्स हैं, म्यूचुअल फंड तो जीत जा रहा है उस चीज में। और म्यूचुअल फंड जीत जा रहा है तो फिर लफड़ा ही क्या है, मतलब व्हाई आर पीपल डूइंग इट? जीत जा रहा है कि तो बात सेकेंडरी है। आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद losing money and not being able to generate that alpha. As matter of fact, I think पिछले 4-5 साल में जो मेरे bulk of fresh money that I have put in, वो मैं इंडेक्स इंडेक्स में ही डाल रहा हूँ यार। मेरे को तो वो एक्टिव फंड वाला लफड़ा भी जो है ना, कि एक्टिव फंड में डालना है, नहीं जी स्मॉल कैप का टाइम चल रहा है या नहीं नहीं। फार्मा सेक्टरल में डालो। मेरे को तो, एंड आई अंडरस्टैंड दैट यस, इफ आई एक्चुअली डू दैट देयर माइट बी सम अल्फा दैट आई विल बी एबल टू जनरेट एंड ऑल दैट, बट देखो इसमें उसपे रवि भी गिव भाई, अप मार दिया हूं मैं तो। या रवि भाई इसमें देखो एफर्ट जाता है बहुत ज्यादा। इफ यू नो गो इनटू स्टफ, कि आप बोलो कि व्हाई आई कांट बी सक्सेसफुल, यस यू कैन बी, बट एफर्ट बहुत ज्यादा जाएगा फॉर समवन हु इज इनटू जॉब उसको। अब देखो एफर्ट की भी बात ऐसी है कि एफर्ट के बाद भी यू कैन मेक लॉसेस। ऐसा नहीं है कि यू विल गिव टाइम एंड यू विल मेक मनी, कि आपने 4 घंटे दिए, 5 घंटे दिए, हफ्ते में 10 घंटे दिए, एंड यू आर एबल टू मेक मनी। अब वो भी डिपेंड करता है मार्केट की साइकिल के ऊपर। इफ द मार्केट टर्न्स, देन हाउ द हेल यू आर गोइंग टू मेक मनी अबव फ्रॉम मार्केट्स? बट भैया थोड़ा हमको डिफिकल्ट होता है, मतलब इट इज नॉट दैट इजी। मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूँ, कोई डाउट नहीं है, बट मेरे को कोई कहानी सुनाने को चाहिए ना यार, कि मैं भी जाके जो है ना पार्टी के अंदर बोलूंगी भैया मैंने आईटीसी जो है वो 250 रुपए में खरीदा था और सम तो कहानी तो बहुत सिंपल है इसमें बॉस,
कि यार मैं देखता हूँ ट्विटर, और ट्विटर हम्म, पे जिस स्टॉक के मीम बनते हैं ना, मैं तो वो स्टॉक खरीदता हम्म, हूँ। चलो। आईटीसी पे बने थे 200 पे, मैंने खरीद हम्म, लिया। हम्म, उसके बाद रिलायंस पे बने थे मीम्स की 7 साल से कुछ नहीं कर रहा, मैंने खरीद लिया। और हम्म, उसके बाद 3 गुना हो गया। हम्म। तो मीम्स आर अ वेरी गुड वे इंडिकेटर। ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो मीम फार्मिंग करो, जिस कंपनी की मीम सबसे ज्यादा बनती है उसी को मेरा एक्यूमुलेट करो फिर। मेरा एक दोस्त है, यूएस में है, बात होती रहती है उससे। वो बता रहा था कि एक नैन्सी पेलोसी इंडेक्स बना रखा है उन हाँ लोगों ने, क्योंकि वो हाँ। लोग फॉलो करते हैं और मस्त चलता है बॉस की। बोला सोचना ही नहीं है, ब्लाइंडली उठा के उसके अंदर डालते रहो। एक एक इनवर्स 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 कार्मर भी है वहां पे। इनवर्स का क्रेमर, क्रेमर, कार्मर है, क्रेमर है, जिम जिम जो भी है, मतलब है जो भी है, फिनटेक। हाँ है। आई हर्ड दैट एज वेल। तो तो उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है कि नेस्डैक ऐसे ही थोड़ी गिर जाएगा। तो उस पे एलॉन ने भी रिप्लाई किया, ओ ओ लग गई लंका लग गई बेसिकली। लंका। चलो देखते हैं क्या होता है। मतलब हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, इलॉन अंकल भी यही हैं। सब यही है। होपफुली ट्विटर की हालत थोड़ी सी वो सुधार देंगे। सो थैंक यू दीपक, थैंक्स अ लॉट फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम टुडे, एंड आई होप टू डू दिस अगेन sometime. And to the audience, I would request you to please like this video and comment on this video if you have any questions for me or Deepak. Hope I've earned the privilege of your time. Thank you.